ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں، ہزاروں خاندان بے گھر ہو گئے۔ سیلاب زدگان کی امداد اور بحالی کے لیے سٹی 41 کا احسن اقدام۔ سٹی 41 دفتر کے باہر امدادی کیمپ قائم کر دیا گیا۔ سٹی 41 کی تاجروں اور شہریوں سے سیلاب زدگان کی امداد کی اپیل۔ خیمے، راشن، کمبل، ادویات، رضائیاں اور دیگر اشیاء کیمپ میں پہنچائی جا سکتی ہیں۔ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں، ہزاروں خاندان بے گھر ہو گئے۔ سیلاب زدگان کی امداد اور بحالی کے لیے سٹی 41 کا احسن اقدام۔ سٹی 41 دفتر کے باہر امدادی کیمپ قائم کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے صدر سپریم انجمن تاجران اسلم بھلی صاحب سے۔ سر، آپ یہ کہیے گا اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اس وقت ہمارے ملک کے اوپر سیلاب کی صورت میں عذاب آیا ہوا ہے، اللہ پاک ہم سب کو معاف کر دے، رحم کر دے ہمارے ملک پر۔ سٹی 41 نے جو یہ اپنے طور پہ یہ مہم شروع کی ہے، یہ انتہائی اس وقت اس کی ضرورت تھی۔ ویسے تو بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، ہمیں بغیر کسی اپیل کے خود بخود باہر نکلنا چاہیے اور اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے اور اپنے ان کی مدد کے لیے خود بخود آگے آنا چاہیے۔ اور مگر اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں اس کمپین کی ضرورت تھی، جس کو 41 اس وقت یا سٹی جو نیٹ ورک ہے وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے۔ میں اس کو سراہتا ہوں۔ اور ایک بات اور کہ اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کیجیے اپنے طور پر کہ لاکھوں مویشی جو ہیں وہ بیچارے ان لوگوں کے جن کا آسرا ہی وہ ہے، جن کا یا زراعت پر بیس ہے یا ان کا جو مویشی پال جو بیچارے ان کا سارا دار و مدار ہے، وہ سارے لاکھوں مویشی ان کا سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ اور جب وہ بیٹھ گئے ہیں یا وہ چلے گئے ہیں یا ان کا آسرا جاتا رہا ہے، تو ان کے لیے جو ہے بقایا جتنے ان کے مویشی ہیں ان کا چارہ نہیں رہا، کیونکہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ تو جہاں پہ ان کی خوراک کا، ادویات کا بندوبست کرنے کی ضرورت ہے، وہاں مویشیوں کے لیے چارہ اور ان کی خوراک کا بندوبست کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ بہرحال 41 نے جو یہ اقدام کیا ہے اس کے لیے میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور اپنی پوری تاجر برادری، بزنس کمیونٹی، اپنے جتنے انڈسٹریلسٹ ہیں اور عام آدمی، ان کے آگے میں بھی آپ کی اس اپیل میں شامل ہوں کہ یہ اس کے اندر بھرپور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ہم آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنے پاکستانی بھائیوں کی مدد میں کوئی کسر اٹھا نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، صدر سپریم انجمن تاجران اسلم بھلی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا اور ہمارے اس اقدام کو سراہنے کا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں بڑھتے بجلی کے بلوں پر عوام پریشان۔ متعدد صارفین بجلی کے بل جمع کروانے سے قاصر۔ شہریوں نے حکومت سے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کرنے کی اپیل کرتی ہے۔ بڑھتے بجلی کے بلوں پر عوام پریشان، متعدد صارفین بجلی کے بل جمع کروانے سے قاصر۔ شہریوں نے حکومت سے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کرنے کی اپیل کر دی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شراز بٹ سے۔ جی شراز، بتائیے گا۔ بجلی کے اضافی بلوں پر اس وقت عوام فیصل آباد کی شہریوں کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے اور آج اور کل آخری تاریخ تھی بلوں کے جمع کروانے کی اور کئی لوگ ایسے ہیں، کئی صارفین ایسے ہیں جنہوں نے بجلی کے بل جمع نہیں کروائے کیونکہ ان کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ بجلی کے بل جمع کروا سکے۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، اضافی بجلی کے بلوں پر ان کی کیا رائے ہے، جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں ٹائل کا بزنس کرتا ہوں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ بجلی کے بل کتنے آئے ہیں اس دفعہ؟ بجلی کے بل بہت زیادہ آ گئے ہیں، اتنی تنخواہ نہیں ہے جتنے بجلی کے بل آ گئے ہیں اور ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ بجلی کے بل واپس لیں، نہیں تو ہم مجبور ہیں۔ ہم کیا ٹھیک ہے، حکومت سے اپیل کی جا رہی ہے کہ بجلی کے بلوں میں اضافہ جو ہے اس کو واپس لیا جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کتنا بل آیا تھا؟ میں آیا 14,000 روپیہ۔ کمائی کتنی ہے؟ ہماری 18,000 تنخواہ ہے۔ 18,000 تنخواہ میں 14,000 روپے بل جو چلا جائے گا تو بچوں کا اسکول کی فیس کتنا ہوگی، گھر کا رینٹ کتنا ہوگا، کس طرح گزارا؟ اور گزارا بہت مشکل ہو گیا، جب سے حکومت آئی بہت گزارا مشکل ہو گیا، لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ جڑے بل انہیں ودائے انہیں تو کنٹرول کرے، انہیں تو جڑے واپسی کیتے جانے۔ اس دفعہ جو بل آیا آپ نے جمع کرایا کہ نہیں؟ نہیں، ابھی نہیں کرایا۔ ٹھیک ہے، جمع نہیں کروایا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بل جمع ہی نہیں کروایا کیونکہ اضافی بلوں کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ شہریوں کی جانب سے حکومت سے اپیل کی جا رہی ہے ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ بہت شکریہ شراز بٹ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔
डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। डेली वेजेस मुलाजमीन के कम से कम उजरत 25,000 रुपए होगी। फेस्को हेडक्वार्टर ने अहकाम जारी कर दिए। आपको अपडेट कर रहे हैं, डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। डेली वेजेस मुलाजमीन की कम से कम उजरत 25,000 रुपए होगी। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने अहकाम जारी कर दिए। तफसीलात जानेंगे, अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, फेस्को रीजन भर के डेली मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। इसी वाले से फेस्को की जानिब से डेली वेजेस मुलाजमीन की कम से कम उजरत 25,000 रुपये फिक्स कर दी गई है और फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को खसूसी तौर पर हदायत भी जारी कर दी गई हैं और डेली वेजेस मुलाजमीन का जो रिकॉर्ड है वो भी इकट्ठा कर लिया गया है और ये हदायत जारी की गई हैं कि डेली वेजेस मुलाजमीन को माहाना कम से कम उजरत जो है वो 25,000 रुपये फराहम की जाए ताकि डेली वेजेस मुलाजमीन के जो आमदन है उसमें इजाफा हो सके। इसी वाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि फेस्को रीजन भर में डेली वेजेस मुलाजमीन को जो है वो मुश्किलात का सामना था और उजरत कम होने की वजह से बहुत सी शिकायत डेली वेजेस मुलाजमीन की जानिब से की जाती थी और अब जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद की हदायत पर फेस्को रीजन भर में जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं उनकी कम से कम उजरत जो है वो 25,000 रुपये कर दी गई है और डेली वेजेस मुलाजमीन की उजरत में मजीद इजाफा करने के हवाले से भी मनसूबाबंदी तैयार की जा रही है ताकि डेली वेजेस मुलाजमीन को सहूलत फराहम की जा सके और डेली वेजेस मुलाजमीन के वर्किंग स्पिरिट और मुद्दत मुलाजमत हेडक्वार्टर्स ने अहकाम भी जारी कर दिए हैं। अवैस, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद सीपीओ का मेडिकल सुपरिटेंडेंट डीएचक्यू हॉस्पिटल को मरासला। खदीजा केस में मुलव्वस मरकजी मुल्जिम शेख दानिश के जिनसी टेस्ट कराने की दरख्वास्त कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद सीपीओ का मेडिकल सुपरिटेंडेंट डीएचक्यू अस्पताल को मरासला। खदीजा केस में मुलव्वस मरकजी मुल्जिम शेख दानिश के जिनसी टेस्ट करवाने की दरख्वास्त कर दी गई। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद सीपीओ की जानिब से डीएचक्यू अस्पताल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है इन्हें मरासला जारी किया गया है। फैसलाबाद का एक बहुत मशहूर केस है, फाइनल ईयर की जो बीडीएस की तालबा है खदीजा, इसके ऊपर तशद्दुद, इंसानी सोच वाक़या और उसके साथ साथ ज्यादती का जो था वो भी मुकदमा दर्ज किया गया था और इसमें जो मरकजी मुल्ज़म शेख दानिश इस वक्त जो कि पुलिस हिरासत में है, इसके जिनसी के हवाले से जो था वो टेस्ट करने के हवाले से मेडिकल के जो टेस्ट है उसकी हदायत मेडिकल सुपरिटेंडेंट को की गई थी, गुजारिश की गई थी कि डॉक्टरों की एक जो टीम है वो थाना कोतवाली में भेजी जाए और वहाँ पे आके जो शेख दानिश जो कि मरकजी मुल्ज़म है खदीजा का, वो इस वक्त वहाँ पे मौजूद है और इसके जो है मेडिकल टेस्ट, इसकी जो मेडिकल फिटनेस जो है वो चेक की जाए और इससे मुतल्लिक जो डीएचक्यू अस्पताल की इंतजामिया उनका कहना है कि हमारी तरफ से जो टीम वो जा चुकी है और शेख दानिश के जो है मेडिकल टेस्ट जो है वो लिए जा चुके हैं और इसकी रिपोर्ट कुछ देर के बाद जो डीएचक्यू अस्पताल इंतजामिया से जारी की जाएगी। मगर जो मुल्ज़म शेख दानिश है इसकी डीएचक्यू अस्पताल में तैनात जो एमएलसी यानी कि मेडिकल लीगल के जो डॉक्टर हैं उनकी जानिब से टेस्ट ले लिए गए हैं। खदीजा केस में मुलव्वस मरकजी मुल्जिम शेख दानिश के जिनसी टेस्ट कराने की दरख्वास्त दे दी गई है। बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चनियोट में नर्सिंग हॉस्टल का कयाम 13 साल बाद भी न हो सका। फैसलाबाद और दीगर बड़े शहरों से आने वाली 50 से ज़ायद नर्सिंग स्टाफ प्राइवेट हॉस्टल्स में रहने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चनियोट को बने 13 साल बीत गया लेकिन नर्सिंग हॉस्टल का क़याम ताहाल नहीं हो सका। ये बिल्डिंग जो है वो इसको अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जो है वो नर्सिंग हॉस्टल के लिए बनाया जाना था और ये अरसा दराज से खंडरात का मंजर पेश कर रही है। मेरा कैमरामैन अली ज़ेब आपको दिखा भी सके तो ये वो बिल्डिंग है जिसके लिए हेल्थ काउंसिल के बजट से जो है वो खतीर रकम मुख्तस की गई लेकिन मुख्तस होने के बावजूद भी जो है वो इस बिल्डिंग को ताहाल नर्सिंग हॉस्टल का जो है वो क़याम उसमें अमल में नहीं लाया गया। यहाँ पर जो फर्नीचर है, जो यहाँ पर मशीनरी है वो खटारा होती हुई नजर आ रही है। दफातर को, रूम्स को जो है वो ताले लगे हुए हैं और यहाँ पर देखा जाए तो गंदगी और ताफुन ज़दा माहौल बना हुआ है। कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। मशीनरी जो है वो यहाँ पर कबाड़ का मंजर पेश कर रही है। अस्पताल में जो यहाँ पर काम करने वाली नर्सिंग स्टाफ है उनका यही कहना है कि हम
रोजाना की बुनियाद पर जो है वो फैसलाबाद से चिन्योट का रुख करती हैं, जबकि कुछ ऐसी नर्सेज हैं जो कि यहाँ पर प्राइवेट हॉस्टल में रहने पर मजबूर हैं, उनको शदीद दुश्वारी का सामना भी करना पड़ता है। उनकी जानिब से बारहा दफा दरखास्तें दी गई कि यहाँ पर नर्सिंग हॉस्टल के क्याम को यकीनी बनाया जा सके। तो अस्पताल इंतजामिया की जानिब से हेल्थ काउंसिल के बजट से यहाँ पर 35 लाख से ज्यादा की रकम भी मुख्तस की गई और इस बिल्डिंग को रेनोवेट करने के लिए इकदाम किए गए। हाल बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्योट फेस्को में नए मीटरों का कॉल बढ़ गया। नए मीटरों की अदम दस्तयाबी से शहरी रुल गए। कहते हैं 4-4 माह से डिमांड नोटिस जमा कराया लेकिन मीटर नहीं मिल रहे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये? बिल्कुल जी, फेस्को अफसरान ने चीफ फेस्को के भी अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। 4 माह कबल चीफ फेस्को की जानिब से हिदायत की गई थी कि जितने भी नए मीटर हैं वो 6 माह तक जो जून में वो हर सूरत लगा दिए जाएंगे। अभी तक 4-4, 5-5 महीने गुजर गए हैं और शहरियों के नए मीटर जो है वो नहीं लगे, जिस वजह से जो फेस्को सार्फिन है उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कब आपने डिमांड नोटिस जमा करवाया? मीटर लगा है? नहीं, मीटर लगा 5वें महीने का कारा किया था, 4 महीने हो गए, सुबह शाम कह रहे हैं नहीं दे रहे मीटर, बिल्कुल नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं? मीटर नहीं आ रहे? नहीं, मीटर नहीं आ रहे, तंग करते हैं बस। आपने कब डिमांड नोटिस जमा करवाया? मैंने 3रे महीने डिमांड नोटिस जमा करवाया था, पैसे भी दे दिए, सारा कुछ हो गया, लेकिन जनाब सा मीटर ही नहीं आ रहा। बड़ी परेशानी बनी हुई है। मीटर घरों के यानी कि अब 300 इतने यूनिट सड़ रहे हैं, चलो 2 मीटर होते हैं यानी कि बचत हो जानी थी। हमारा अलग अलग घर है, एक घर में यानी कि 1 मीटर से हम 2 घर चला रहे हैं, तो इनकी मेहरबानी करें हमारा मीटर लगवाएं। बिल्कुल जी, फेस्को सारफ मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कैसा कानून है, 5-5 महीने हो गए हैं, डिमांड नोटिस भी जमा करवा दिया, दरखास्तें भी जमा करवा दी हैं, सारी रिपोर्ट रिपार्टी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद 4-4 महीने गुजर गए हैं, उन्हें नए मीटर जो है वो नहीं मिल रहे, जिस वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ ऑनलाइन खुली कचहरी लगाई गई थी 2 माह कबल चीफ फेस्को की जानिब से, और उन्होंने हदायत की थी तमाम फेस्को अफसरान को कि बिजली के मीटर शहरियों को फौरी तौर पर लगाए जाएँ, और अभी तक वो मीटर नहीं लगाए गए, जिस वजह से फौरी तौर पर लगाए जाएं। बाबर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, रवा माली साल की इनकम टैक्स रिटर्न से तकनीकी और कानूनी गलतियां दूर न की जा सकी। गुज़श्ता सालों के इनकम टैक्स रिफंड्स को एडजस्ट करने की सहूलत ही मौजूद नहीं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रवा माली साल की इनकम टैक्स रिटर्न में पाई जाने वाली जो तकनीकी खामियां हैं उनको दूर नहीं किया जा सका। इस हवाले से टैक्स गुजारों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से या FPR की जानिब से ना तो उनको गुज़श्ता सालों के जो उनके रिफंड्स हैं, इनकम टैक्स रिफंड्स, उनकी अदायगी की जा सकी है। बिलखुसूस जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं या जो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, उनके इनकम टैक्स रिफंड जो हैं वो गुज़श्ता कई साल से इल्तवा का शिकार चले आ रहे हैं। ताहम अब वो लोग उन इनकम टैक्स रिफंड्स की मद में जो रकूम है उसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं, मगर FPR की जानिब से उसकी सहूलत भी फ्राहम नहीं की गई, और इस हवाले से इनकम टैक्स रिटर्न जब ऑनलाइन फाइल करना शुरू की जाती है तो उसमें उसकी ऑप्शन ही नहीं आ रही, और यूँ उनकी जो रिफंड्स की रकूम सरकार की जानिब लटकी हुई है, ना तो वो टैक्स गुजारों को मिल रही है, ना ही उस रकम की एडजस्टमेंट या रिफंड्स की एडजस्टमेंट उन टैक्स गुजारों को मिल रही है। तो इस हवाले से टैक्स गुजारों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि FPR इस मामले का नोटिस ले और इस रिफंड्स को एडजस्ट करने की। आप हमें आगाह कर रहे थे। चिन्योट में ट्रैफिक पुलिस कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी है। तहसील चौक चिन्योट में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की कार्रवाइयां जारी हैं। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे वकार घुमन से। वकार, क्या अपडेट्स हैं? और जी, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आज चिन्योट शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर जो वायलेशन करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिनमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी शामिल है, मोबाइल फ़ोन सुनने वाले कम उम्र जो ड्राइवर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इंस्पेक्टर इरफान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इरफान साहब, किन किन मुकामात पर आज आप ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल DPO साहब चिन्योट और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर चिन्योट की हिदायत के मुताबिक हम लोग मुख्तलिफ जगह पर ख़त्म नबूवत चौक में, बाईपास फैसलाबाद रोड, बाईपास सरगोदा रोड, हम लोगों ने नाकाबंदी की हुई है ताकि हम अप्लाइड फॉर गाड़ियाँ जो कम उम्र ड्राइवरान हैं, इसके अलावा जो गाड़ियों की हालत को चेंज कर देते हैं, गाड़ी जो उसके टैंकी उसके टापे चेंज करके अगर वो रेड कलर की होती है, डिफरेंट कलर में नज़र आती है, तो उनके खिलाफ हम क्रैकडाउन कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ हमने PSV गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है, जो फट्टा लगाते हैं, ओवर चार्जिंग करते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि रोड को हादसा से महफूज किया जा सके और इसके साथ साथ लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके, और ख़ासकर जो वारदात है उनको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि अप्लाइड फॉर गाड़ियों के ऊपर वारदात की रेशो बहुत ज़्यादा है।
اس لیے ہم سب سے زیادہ فوکس اپلائڈ فار گاڑیوں پہ کر رہے ہیں. جی سر. بالکل جی، اس مہینے میں اب تک 14 لاکھ سے زائد روپے کے جرمانے کیے گئے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. 14 لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے گئے. وقار اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. خبر شامل کریں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں انتظامیہ کی بڑی غفلت. شہر کے سب سے بڑے لاری اڈے کے CCTV کیمرے خراب نکلے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر، بتائیے گا. جی بالکل، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں انتظامیہ کی بڑی غفلت سٹی 41 سامنے لے آیا ہے. ٹوبہ ٹیک سنگھ کا بڑا لاری اڈا جہاں پر کیمرے ہی خراب نکلے ہیں. CCTV کیمرے صرف نمائش کے لیے لگائے گئے لیکن یہ کیمرے فعال نہیں ہیں، ان کی مانیٹرنگ کا عمل جاری نہیں ہے، جس کی وجہ سے بلا شبہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اس لاری اڈے میں سیکورٹی خدشات بڑھ گئے ہیں. ٹوبہ ٹیک سنگھ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ پورے شہر میں CCTV کیمرے لگائے گئے ہیں جس کے ذریعے شہر کی مختلف شاہراہوں کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے، لیکن یہ بڑا لاری اڈا یہاں پر 10 کے قریب جو CCTV کیمرے لگائے گئے ہیں ان میں سے بیشتر کیمرے خراب نکلے ہیں. اکا دکا کیمروں کے ذریعے ہی صرف مانیٹرنگ کا عمل جاری ہے. ٹوبہ ٹیک سنگھ شہر کے اس لاری اڈے میں کون آیا اور کون گیا اس بات کا کوئی ریکارڈ کسی بھی کیمرے میں محفوظ نہیں ہے، جس پر ٹوبہ ٹیک سنگھ میں آنے والے جو مسافر ہیں، شہری ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ اس صورتحال کا نوٹس. سیکورٹی خدشات بڑھ رہے ہیں. بہت شکریہ مبشر حسن نقوی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. NA 108 کے انتخابات کے حوالے سے اہم پیش رفت. عابد شیر علی نے الیکشن کمیشن نوٹس کا جواب جمع کرا دیا. الیکشن کمیشن کی جانب سے امیدواروں کی فہرست آج شائع ہوگی. بات کریں گے، عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالرحمان، بتائیے گا. جب بات کریں اگر NA 108 کے انتخابات کے حوالے سے تو یہاں پر اس میں اہم پیش رفت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے عابد شیر علی کو بلایا گیا تھا جو اعلانات کروائے گئے تھے بلز کے حوالے سے، تو اس پر عابد شیر علی نے اپنے وکیل کے ذریعے جواب جمع کروا دیا گیا ہے. آج 26 اگست کو ریوائزڈ فہرست جو الیکشن کمیشن کے دفاتر میں امیدواروں کی لگا دی جائے گی. 13 امیدوار ابھی تک مقابلے میں موجود ہیں اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر کل امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے. PTI سے کون الیکشن لڑے گا، نون لیگ سے کون لڑے گا، یہ کل پتہ چل جائے گا. آزاد امیدوار کتنے بیٹھتے ہیں یہ بھی کل اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ چودھری شیر علی یا عابد شیر علی دونوں میں سے ایک الیکشن میں حصہ لیں گے. اسی طرح سے عمران خان یا فرق حبیب دونوں میں سے انتخابات میں ایک امیدوار حصہ لے گا، باقی بیٹھ جائیں گے. پرسوں جو ہے وہ 28 اگست کو جو پھر امیدواروں کی جانب سے اپنے انتخابی نشانات جمع کروائے جائیں گے، جو پارٹی ٹکٹس ہوں گے وہ جمع کروائے جائیں گے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے انہیں انتخابی نشانات الاٹ کر دیے جائیں گے. ان کے پارٹی ٹکٹس کے اگینسٹ جو پارٹی ٹکٹ جمع نہیں کروائے گا اس کو آزاد نشان الاٹ کیا جائے گا. اور پھر جو 29 اگست کو امیدواران ان کی جو ان کے انتخابی نشانات ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو فہرستیں ہیں ان کا حتمی اجرا ہوگا. 29 اگست کو نشانات الاٹ کیے جائیں گے. عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. کبھی آپ کو بتائیں فیصل آباد میں سٹی 41 کی نشاندہی پر ڈپٹی کمشنر کا بڑا اعلان. ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ کا زیر تعمیر پارکنگ پلازا کا دورہ. پارکنگ پلازا کو موجودہ صورتحال میں پارکنگ کے لیے کھولا جائے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں وقاص بیگ سے. جی وقاص، بتائیے گا. اچھا بالکل، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی جانب سے فیصل آباد میں عرصہ دراز سے زیر التواء پارکنگ پلازے کا وزٹ کیا گیا ہے اور اس وزٹ کے دوران اسی پلازے کو اسی صورتحال کے اندر کارآمد بنانے کے حوالے سے بھی خاصی گفتگو کی گئی ہے. اس بارے میں اگر بتاتا چلوں تو فیصل آبادیوں کو آنے والے 2 مہینوں میں کم سے کم 2000 موٹر سائیکلوں کی پارکنگ جو ہے وہ ملنے والی ہے اسی زیر تعمیر پارکنگ پلازا میں. ڈپٹی کمشنر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے. سر، بڑی دیر سے عرصہ دراز سے یہ پلازا جو ہے زیر تعمیر تھا اور یوں ہی خالی جگہ پڑی تھی، اس پر اب جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے شہریوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے گا اور کتنا مزید وقت درکار ہوگا کہ کم سے کم ہمارے شہر کے 8 بازار جو ہیں وہ موٹر سائیکلوں کی بے ہنگم پارکنگ سے جو ہے وہ مکت ہو سکے؟ جی، یہ نور الامین مینگل صاحب جب ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر تھے فیصل آباد کے، انہوں نے یہ ایک فلیگ شپ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا اور پورے شہر کو اس وقت سے انتظار ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کمپلیٹ ہو تاکہ شہر کی جو 8 بازاروں کی پارکنگ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے. بہرحال کچھ گورنمنٹ کے ایشوز کی وجہ سے، کچھ سسٹم کے چینج، کچھ فنڈز کی کمی کی وجہ سے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ التوا کا شکار ہے. سٹی 41 نے جب مجھے کل اس پرابلم کی نشاندہی کی تو کل ہی میں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں آؤں گا اور تمام جو ہماری ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز اور ریلیونٹ آفیسرز ہیں ان کو لے کے آؤں گا. آج ہم نے اس کا وزٹ کیا. جب وزٹ کیا ہے تو پتہ یہ لگا ہے کہ یہ پلازا کا جو بڑا جب کمپلیشن ہے وہ تو جس وقت ہوگی تب ہوگی، لیکن کرنٹلی اس کا سٹرکچر اتنا
कंफर्टेबल और इतना स्ट्रॉन्ग है कि कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस करके इसको कम से कम मोटरसाइकिल्स के लिए खोला जा सकता है। और उस के अंदर जब हम मोटरसाइकिल्स के लिए खोलेंगे तो तकरीबन 1800 से 2000 मोटरसाइकिल्स इसमें आ जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि अगर हम इसको स्लाइट मॉडिफिकेशंस करके फिलहाल मोटरसाइकिल्स के लिए खोल दें फेज़ 1 के अंदर, तो कम से कम ये हमारे बाज़ारों में जो बेहंगम मोटरसाइकिल्स की ये जो पार्किंग है इसका मसला हल हो जाएगा। और फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हमारी यही है कि इंशाल्लाह ताला इस प्लाजा को हम यही 5 मंजिला प्लाजा बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद का ये बाजार के इलाके की जो ट्रैफिक का या पार्किंग का मसला है इसको परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू। अच्छा, बिल्कुल इसी किया गया है कि आने वाले 2 माह में मजीद स्लाइडिंग जो है इसी बहुत शुक्रिया वकास बेग, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, झंग में सैलाब के बायस पोलियो मुहिम का टारगेट पूरा करना महकमा सेहत के लिए मुश्किल हो गया। सैलाब से मुतासरा 13 यूनियन काउंसिल्स के 528 घरों में पोलियो टीम न पहुंच सकी। महकमा सेहत की जानिब से पोलियो टीमों को कश्तियां फराहम करने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई। इसी पर मजीद बात करते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग को पोलियो फ्री बनाने के लिए जो है महकमा सेहत की जानिब से इकदाम जारी हैं। इस टाइम CEO हेल्थ जो है डॉक्टर मंजूर हुसैन ने मुख्तलिफ जगह का दौरा किया, वहाँ पर जो है वो टीम्स की हाज़िरी चेक की और पोलियो वैक्सीनेशन के अमल को भी चेक किया। हमारे साथ डॉक्टर मंजूर हुसैन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, 5,50,525 का टारगेट था, तो अब तक कितने का टारगेट जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है? और आने वाले दिनों में फ्लडेड एरियाज़ हैं हमारे पास, तो वहाँ पर हमारी 15 के करीब जो है वो यूनियन काउंसिल है, वहाँ पर जो है वो उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन CEO हेल्थ जंग बात कर रहा हूँ। हमारे ये 22 से 25 अगस्त तक जो है वो हमारी टीमें काम करनी थी फील्ड में, और इस तरह जो 85 यूनियन काउंसिलें हैं उनमें 85 ही UCMOs थे और 480 के करीब ये एरिया इंचार्जेस थे जो काम करने वाले थे, और उनकी सुपरवाइजरी जो है टीमें वो हमारी वो भी थी। और इसके साथ साथ जो है टोटल टीमें जो हैं वो 2363 थी। इन्होंने अब तक जो है ये तकरीबन 5,47,000 जो है वो टारगेट पूरा कर लिया है, और टोटल टारगेट जो था वो 5,50,526 था। हमारे NA बच्चे जो आज तक रहते हैं वो 13 करीब हैं, और आज आखिरी दिन है और इंशाल्लाह ये हम NA बच्चे जो हैं वो कवरेज लेंगे और हमारा टारगेट इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। इस वक्त जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट 99% जो है वो कवरेज कर चुका है। बाकी हमारी 13 जो यूनियन काउंसिल हैं ऐसी हैं जो सैलाब की जद में थी, उनका हमने प्लान आज बना दिया है और कल से इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट कर दिया है हमने उनका वर्क जो है। और इन सैलाबीज एरिया में हम जो है डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर से जो है हमने फेवर हासिल कर लिया है, और उसमें बोट वगैरह वो इस्तेमाल होंगी। और उनके साथ साथ हम ऐसे यानी कि पानी में बच्चों को भी ये कतरे पोलियो टीमों को कश्तियां फराहम करने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। बहुत शुक्रिया वसीम अजीज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टोबा में इंसदाद डेंगू के हवाले से DC जाहिद सुहेल की जेर सदारत इजलास। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा ने इंसदाद डेंगू की मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग दी। इजलास में इंसदाद डेंगू के हवाले से इंतजामात का जायजा भी लिया गया। जाहिद सुहेल कहते हैं अगस्त में 1,66,979 घरों की 54,412 मकामात पर आउटडोर सर्वेलेंस की गई। 2 मकामात से डेंगू लार्वा की निशानदही हुई और उसकी तल्फी को भी यकीनी बनाया गया। तब आपको बताते हैं DHQ हॉस्पिटल फैसलाबाद में 8 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाली 1400 से ज्यादा सोलर प्लेट्स बहाल कर दी गईं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल DHQ अस्पताल में बिलाखर जो सोलर प्लेट्स थी इन्हें फ़ाल बना दिया गया है। सोलर प्लेट्स जो थी वो लगाई गई थी और तकरीबन 2 से 4 महीने में जो था मनसूबा मुकम्मल होना था। बिजली के बिलों की मद में जो थे पैसे की रकम बचाई जानी थी, मगर मनसूबा ताख़ीर का शिकार हो गया और अब बताया जा रहा है कि सोलर प्लेट्स DHQ अस्पताल में मुकम्मल फ़ाल हो चुकी हैं। कितनी इसके ऊपर लागत आई है और कितनी बिलों की मद में जो है वो पैसे हुकूमत की खजाने को बचाए जा सकेंगे, हमारे साथ डायरेक्टर एमरजेंसी DHQ अस्पताल डॉक्टर साथ मौजूद, हमसे जानते हैं। जी सर बताएं, कितनी सोलर प्लेट्स जो है लगी हुई हैं, कितनी इसके ऊपर लागत आई है और माहाना तकरीबन कितनी जो है बिल के बीच के जो बचत है उसकी की जा सकेगी पैसों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था पीका के थ्रू पीका सिस्टम। ये कोई पंजाब लेवल पे था। 3 हॉस्पिटल थे, शेखपुरा DHQ और एक और हॉस्पिटल था जहाँ पे ये इंस्टॉल होना था। ये पिछले साल अप्रैल में स्टार्ट हुआ और इसकी कंप्लीशन होनी थी दिसंबर तक। ड्यू टू वन और द अदर रीज़न वो कुछ डिले का शिकार हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अब फंक्शनल हो गया। इसमें हमारी जो कास्ट है गवर्नमेंट की आई वो है 8 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। जो महाना हमें इसकी इलेक्ट्रिसिटी की मद में जो ईयरली हमें जो बचत होगी वो है 3 करोड़ के करीब। हमारे 1400 के करीब फैन जो हैं इस पे चले गए हैं और 1600 के करीब ट्यूब्स चली गई और बल्ब। ये हमारी जो टोटल रिक्वायरमेंट है ना जी वो असदार हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।